इंशाल्लाह। तो देखते हैं कि ये बुनियादी तौर पे क्या है। चले, जी अच्छा, अब इसमें बुनियादी तौर पे ये है कि टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ठीक, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी बुनियादी तौर पे क्या चीज है? Before discussing the concept of this marketable security, first of all, we should have to have a clear vision about one thing, that why companies prefer to hold cash. Why the companies they are going to hold the cash in their pocket? There are three main motives for holding the cash. The one is referred as the companies they are going to hold the cash for their transactional motive, mean that every company needs cash for the planned payments. Just like you are going to hold a cash because you have to pay the salary, you have to pay the wages, you have to pay the insurance, fine, you have to pay the rent, okay, so and you have to purchase the merchandise, okay, so mean that you need a cash for your day-to-day activities. This is called as, that is transactional motive. Second important thing is that the companies, they are not only going to hold the cash for the transactional motive, but also they are going to hold the cash for safety purposes. Safety purposes basically mean that they would like to hold the cash for their unexpected needs. अब जस्ट लाइक जिस तरह हमारी डे टू डे लाइफ में हम क्या करते हैं कि दैट इज वी आर हैविंग सर्टेन सेविंग्स, we have kept all these savings for the rainy days or for the bad times, that I have holded some of the money in my pocket, I have saved some of the money in my pocket, that whenever there will be a need for it, I simply have to use it. So mean that I am not only going to hold the cash only for my planned activity, but also I have to maintain some of the cash for my unplanned activities, for my unexpected payments. So why the companies they are going to hold the cash for the safety motives or for their unplanned payment is because in future anything can be happen. For instance, that the worker may demand a rise in the wage, the worker may demand a rise in the salary, the landlord can increase the rent of the office space, okay, as well as what is going to be happen, that is the vendor may refuse to supply us the product on credit. So if we are having some surplus cash, so then we can, you can say that then we can meet the unexpected needs. But if we are not going to hold the cash for the safety motive, then it is very difficult for us. अभी जस्ट लाइक पिछले दिनों में एक हम टीवी पे ड्रामा आ रहा था, मेरे पास तुम हो, और उस मेरे पास तुम हो के अंदर जो है वो क्या होता है कि जो वर्कर्स हैं, ठीक है, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं और वो क्या करते हैं, दे वर डिमांडिंग अ राइज इन द वेज, दे वर डिमांडिंग अ राइज इन द सैलरी। और वो जो अपना लीडर होता है, उनका वर्कर्स का लीडर होता है, वो कहता है कि आपने अगर अपनी ज़ात के लिए बेनिफिट्स लिए तो हम आपके लिए काम नहीं करेंगे। नाउ यू हैव टू ask for the rise in the salaries and wages to the to the directors, that they should increase the remuneration of all of the workers who are working in the factory. अब वो जो भी कंपनी का सीईओ या प्रेसिडेंट था, मिस्टर वो क्या था उसका नाम था, शहवार था मेरा ख्याल शायद। तो वो जो मिस्टर शहवार है, उसको खौफ ये था कि कहीं मेरी बीवी जो है वो अमेरिका से जल्दी से वापस ना आ जाए और उसके बाद जो है वो देखे कि फैक्ट्री के अंदर सारी गड़बड़ चल रही है। तो then he has decided that why not I should increase the salaries and wages of my workers so that there shouldn't be any kind of interruption during the production process. So if you are going to hold a cash for some unexpected needs, so then you can meet the need of your worker. But if you don't have the cash at that point in time, then it is very difficult for you and your production process may be stopped. Okay. Then the third thing is the companies, they are also going to hold the cash for the speculative purposes. Speculative purposes basically mean that if you would like to get a benefit of any unexpected opportunity, just like अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि that the market interest rate was so high
and the people prefer to keep their savings in the bank. Rather, they have invested the resources in the real estate. What they have done it that they have transferred all of their money in the bank because the banks they were offering the high rate of return to them. ठीक है, अब जिस वक्त पैसा निकला रियल एस्टेट से तो बैंकों के अंदर चला गया, अब उस प्रोसेस में रियल एस्टेट क्या कर गया, बैठ गया, ठीक है, और उस प्रोसेस में क्या हुआ दैट द प्राइस ऑफ द लैंड शार्पली डिक्लाइंड इन द मार्केट. So the people who were having the money at that point in time, they were having an opportunity to invest the resources in the land. And then they have to wait for a good time, just like now the good time is started. Why the good time is started? Because now the market interest rate declines. And again, the people would like to get their money back from the banks and they would like to put a money into the real estate sector. Okay. Lekin the people who have bought the piece of land during the crisis on the real estate sector, now it is a time to get a benefit of, now it is a time to get a benefit on that investment which they have made in the past. तो ये बुनियादी तौर पे तीन पर्पसेस हैं कैश को रखने के. द वन इज द कंपनीज आर गोइंग टू होल्ड अ कैश फॉर द ट्रांजैक्शनल मोटिव, फॉर सेफ्टी मोटिव, एज वेल एज यू कैन से दैट फॉर योर दैट इज योर स्पेकुलेटिव मोटिव. इसमें एक चौथा मोटिव भी होता है, इसमें एक चौथा मोटिव भी होता है और उस चौथे मोटिव को हम बुनियादी तौर पे क्या कहते हैं, चौथे मोटिव के लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, उसे कहते हैं कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट. कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट, कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट के अंदर बुनियादी तौर पे होता है कि लेट्स सपोज दैट इफ यू हैव बोरोड अ 5 million rupees फ्रॉम द बैंक, तो बैंक इज पुटिंग अ रिस्ट्रिक्शन ऑन यू एंड द रिस्ट्रिक्शन इज that you are required to maintain at least 20% of the loan amount always be in your account. तो आपने 5 million का लोन लिया है तो इसका मतलब है you are only allowed to use 4 million rupees because the 1 million will always be remain present in your account. अब ये जो 1 million है ये बुनियादी तौर पे क्या है कि अगर से कि आपने बैंक से लोन तो 5 million का लिया but you are using only for 4 million and 1 million will stay in your account and you are also required to pay the interest on that. तो ये जो एक मिलियन हमारा बैंक में है इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट. कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट. तो ये चार पर्पसेस होते हैं कि कंपनीज अपने पास कैश क्यों रखती हैं. जी अभी आप में से किसी ने क्वेश्चन किया था, हाथ आ रहा था. सर ये व्हाट डज होल्डिंग द कैश मीन? ये अगर मतलब वी आर नॉट होल्डिंग द कैश, व्हाट डज इट मीन? थोड़ा समझ नहीं आया. होल्डिंग द कैश का क्या मतलब है? मैंने बुनियादी तौर पे सवाल ये है कि आप अपनी जेब में कैश क्यों रखते हैं, क्या जरूरियात हैं आपकी? मींस आप ये कहना चाह रहे मतलब अदर देन ये बैंक में नहीं होंगे, कैश इन हैंड होगा, कोई ऐसी चीज है? अभी हम कैश इन हैंड को डिस्कस कर रहे हैं, अभी कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे, अभी कैश इन हैंड है. हमारा यहाँ पे सवाल ये था कि व्हाई कंपनीज होल्ड कैश. यहाँ अगर मैं आपसे सिंपली ये पूछूं कि व्हाई यू हैव अ कैश इन योर पॉकेट, आप कहेंगे जी मैंने इसकी रोटियां लेने जाना है, मैंने इसकी पेप्सी की बोतल लेने जाना है, मैंने बच्चों को अपना टॉफियां खरीदने के लिए पैसे देने हैं. तो इसका मतलब है यू नीड अ कैश फॉर योर डे टू डे नीड, फॉर योर डे टू डे एक्टिविटीज. फाइन सर, फाइन. ठीक है. इसी तरह से आसान भाषा में अभी मैं आपको सारी चीजें समझा देता हूँ. इसी तरह से आपको पता है कि जी आपकी अपनी सालगिरह आनी है, ठीक है, और जो है कई खुशी के और कई गमी के मौसम आने हैं, तो उस खुशी और गमी के लिए भी आपने पैसा जोड़ के रखा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेफ्टी मोटिव्स. ठीक है. बाज़ औक़ात हम कैश इसलिए रखते हैं क्योंकि हम लालची हैं अंदर से, हम कहते हैं कि जब सोने की प्राइस गिरेगी ना तो सबसे पहले मैं खरीदूंगा इसको. ठीक है. तो इसको स्पेकुलेटिव पर्पसेस कहते हैं. ठीक. इसी तरह से अभी मैंने जो आपके साथ एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट का, तो उसके अंदर यह है कि लेट्स सपोज आई वांट टू बोरो मनी ऑफ 5 million rupees बट द बैंक has imposed a restriction on me that I have to maintain a 20% balance of this loaned amount in my account. तो इसका मतलब है कि मैं पैसा मेरा है, मैं उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता बिकॉज बैंक ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है इसके ऊपर. और बैंक ये भी नहीं कहता कि इस 20% पे तुमने इंटरेस्ट नहीं देना, बैंक इंटरेस्ट भी लेता है उस पर. तो इसको हम कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट कहते हैं. ठीक है. तो ये था हमारा. अब यहाँ पे सवाल ये है कि हाउ ऑल दिस स्टोरी इज लिंक विद द टुडेज टॉपिक दैट इज अकाउंटिंग फॉर मार्केटेबल सिक्योरिटीज. ठीक. अब हम इसको आसान लफ्जों में कहते हैं कि व्हाटसोएवर द कैश व्हिच आई हैव केप्ट इट फॉर माय सेफ्टी नीड्स,
whatsoever the amount of cash which I have kept it for my safety needs, ठीक है, तो वो मैंने कैश कहाँ पे रखा होगा? वो जो मैंने पैसे बचा बचा के रखे हुए हैं वो मैंने कहाँ पे रखे हैं? अपने गले में रखे होंगे हैं, अपने लॉकर में रखे होंगे, ठीक है, या मैंने अपने तकिए में छुपा दिए होंगे, कुछ इस किस्म का काम किया होगा। क्या ख्याल है? इट्स अ पेटी कैश। नहीं बेटा, पेटी कैश वो है जो डे टू डे पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो पेटी कैश है, वो छोटी छोटी आइटम्स के लिए। ये तो हम अपने ऑपरेशनल नीड्स के लिए, इसमें छोटी नीड बड़ी नीड सारी नीड्स शामिल है। मींस यू आर कीपिंग इट इन सम वॉल्ट और व्हाटसोएवर। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अब वो जो पैसा जो आपने अपने वॉलेट के अंदर रखा हुआ है, दैट पैसा इज गोइंग टू लूज इट्स वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्या ख्याल है? ऐसा ही है सर, क्योंकि ऐसा ही है। इट इज नॉट इन द बैंक। जी फातिमा क्या कहती हैं? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ जी हाँ सर, बोलो भाई, जो आपने बोलो भाई लास्ट बोलो। पूछा था, आई मीन सॉरी, लास्ट जरा कॉन्सेप्ट ऊंची जो बोलो, बताया ऊंची था ऊंची माइक के पास जल्दी से। सर, आपने जो लास्ट कॉन्सेप्ट बताया कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट, इसमें तो कैश वो अकाउंट में है कस्टमर के या किसी भी पर्सन के, कैश हाँ एट हैंड तो नहीं है, हाँ, तो ये इसका कॉन्सेप्ट कैसे हुआ? ये इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसको कहते हैं, देखें अब इसमें दो तरीकेकार हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप 5 इस्तेमाल करें जो आपने बैंक से लिया हुआ है, फिर आपको अपना 1 मिलियन बैंक में रखना पड़ेगा। और अगर आपकी जेब में 1 मिलियन नहीं है तो फिर जो बैंक से पैसे लिए हैं उसमें से 1 मिलियन रखना पड़ेगा। जी जी फातिमा, मेरी बात सर ये समझ तो लगी फिर आपको? बैंक में हम रख रहे हैं ना, हमारे इन हैंड तो नहीं हुआ। अरे भाई मेरी एक बात सुनो, बात ये है, इसको कहते हैं, देखें बैंक आपसे ये कहता है कि मैं आपको 5 मिलियन का लोन देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक रिस्ट्रिक्शन है। वो रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप इस लोन अमाउंट का 20% बैंक में हमेशा रखेंगे, इसको देख सकते हैं, खा नहीं सकते। या सर ऐसा तो नहीं है कि इट वाज द अमाउंट प्रीवियसली इन हैंड, जब आपने लोन ले लिया उसको यूज कर लिया, किसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, तो आपने वो जो अपने पास पहले से रखे हुए थे वो बैंक में ट्रांसफर कर दिया? देखें दो चीजें हैं ना, दो चीजें इसमें, दो बातें हैं। एक बात यह है कि अगर आपको 5 मिलियन का लोन लेना है तो अपने अकाउंट में 1 मिलियन दिखाएं, फाइन सर। ठीक है। अब वो जो 1 मिलियन है वो आपका स्टक हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। तो इसको कहते हैं कि द कंपनीज दे आर आल्सो गोइंग टू होल्ड अ कैश फॉर देयर कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट्स। जी फातिमा क्या कहती है, जल्दी जल्दी बोलो। सर ओके मैं सर। इसमें चलो। इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ। हम जब लेंडिंग करते हैं ना बैंक में, तो हाँ हम उनसे ऑलरेडी एक स्टेटमेंट लेते हैं कि हाँ, आपकी जो बिहेवियर है, लास्ट में जो कैश बिहेवियर है वो आपका कैसा है। तो अगर हैंडसम बिहेवियर होता है देन हम उनको लेंडिंग करते हैं, अदरवाइज हम जो लेंडिंग है वो डिक्लाइन कर देते हैं। वो तो हैंडसम उनको वो बिहेवियर को अमाउंट, कैसे मैयर करते हैं? इसका मतलब है कि उसके अकाउंट के अंदर कुछ पैसा होगा तो वो जी जी हैंडसम बिहेवियर बिल्कुल होगा ना। बिल्कुल, उसका टर्नओवर रहा होगा तो ही वो एलिजिबल होता है। थोड़ा सा जरा ऊंचा बोलें प्लीज, जरा ऊंचा बोलें, माइक को जरा अपने मुंह के करीब जी जी लेके आए जल्दी से। जी जी, पर होता है ज्यादा होना चाहिए। मीन वो एक हैंडसम अमाउंट अपने अकाउंट में मीन जमा करवाती हो, निकलवाती हो, और वो मोर देन ठीक है यानी बेटा, काफी आपने अरसे तक वो इनफ्लो, होल्ड भी मैं करी समझ गया बैंक हूँ पे। आपकी बात। देखे ना, बात है कि उसका इनफ्लो जी आउटफ्लो हो रहा है ना उस अकाउंट के अंदर, ठीक जी है। जी तो ये कॉन्सेप्ट हैं। अभी आप देखेंगे ये चार चार चीजें हैं जिसको मैंने डिस्कस किया है, ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ का हिस्सा हैं। और ये चार वो रीजन हैं जिसकी वजह से हम जो है वो कैश को अपने पास होल्ड करना पसंद करते हैं। अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। फातिमा और आमिर, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वन बाय वन जल्दी से बताओ ताकि हम इसको क्लियर करें और आगे चलें। जी सर, इधर ये सवाल ये है कि अभी आपने बात की कि ये ऊंचा चार, ऊंचा 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 जोर लगा के जी बोलो, जी अभी खाना नहीं खाया है। जी जी, ये चार सर पर्पसेस आपने बताए हैं: ट्रांजैक्शनल मोटिव, सेफ्टी पर्पस, कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट, स्पेकुलेटिव पर्पसेस। अभी इतने बड़े ये
पर्पसेस है, इसके लिए तो अमाउंट भी बहुत बड़ी चाहिए होगी। नहीं और ये नहीं, अगर कंपनी अमाउंट इतनी बड़ी कैश में रखेगी तो वो कंपनी कैसे चलेगी, और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कैश भी उसकी वैल्यू भी कम होगी। नहीं नहीं, मैं तो अभी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अभी आप बुनियादी तौर पे वो बिगनर्स हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें ना, आज ही यूनिलीवर की एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड कर लें, ठीक है, और उनके कैश को जो है ना डिवाइड कर दें उनके टोटल एसेट्स पे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रोपोर्शन ऑफ कैश, ठीक है। तो वो जो प्रोपोर्शन ऑफ कैश है ना, वो सिर्फ आपको कैश इन हैंड नजर आएगा, लेकिन आइदर दिस कैश इज मेंट फॉर द प्लान्ड पेमेंट, फॉर अनप्लान्ड पेमेंट, फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस और फॉर दी कंपनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट। इस किस्म की डिवीजन आपको नहीं मिलेगी वहां पे, उस किस्म की डिवीजन आपको वहां नहीं मिलेगी, ठीक है। ये सिर्फ जनरली हम आपको बता रहे हैं कि व्हाई द कंपनीज आर गोइंग टू होल्ड अ कैश। मैंने जिस तरह से बताया, वो तो कंपनी तो एक बड़ी एक दूर की बात है, आप अपनी डेली लाइफ पर्सनल लाइफ में आ जाए, आप कैश अपनी जेब में क्यों रखते हैं? आर यू डूइंग ए जॉब आमिर? जी 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 अच्छा, बिल्कुल सर, अगर छोटे आमिर मोटे। आप जी अपनी जेब में कैश क्यों रखते हैं? क्या आपको रीजंस क्या हैं? आपको घर का जो खर्चा चलाना, यू नीड अ कैश। जी जी बिल्कुल। तो इसको कहते हैं ऑपरेटिंग पर्पसेस के लिए, आपको अपनी ऑपरेशनल नीड, अपने प्लान पेमेंट, आपको पता है ना कि आपको कितना किचन के लिए पैसा चाहिए, कितने बच्चों की फीसों के लिए पैसा चाहिए, बेगम को कितने पैसे देने हैं, सारी चीजें पता है कि नहीं पता आपको? जी सर बिल्कुल पता है, ठीक है, इतने तो एक्सपेंस। ये जो कैश आपने रखा हुआ ना, दिस इज फॉर योर प्लान पेमेंट। हमें क्या पता कल कौन मर जाएगा और उसकी फौतगी पे भी जाना पड़ेगा हमें, कोई हमें पता है उसके बारे में, किसी के बारे में? नहीं नहीं, उसका नहीं पता सर। नहीं पता ना, ठीक है। तो लेकिन हम क्या करते हैं, ठीक है, कि घर में कोई बीमारी आ सकती है, ठीक है, कोई फौत हो सकता है, किसी की शादी पे जाना पड़ सकता है, किसी की सालगिरह को अटेंड करना पड़ सकता है, क्या हमें पता है कि कल क्या होने वाला है? नहीं सर, उसके लिए नहीं तो पता है हम ना, तो इसका मतलब है उस ना पता होने के लिए भी हम कहीं ना कहीं पैसे छुपा के रखते हैं, जिसको हम सेफ्टी पर्पस कहते हैं, जी सर ठीक है। बिल्कुल सेफ्टी है। पर्पस का मतलब है फॉर अवर अनएक्सपेक्टेड नीड्स, ठीक है। और बाज़ औक़ात हमारे अंदर लालच होता है, ग्रीडी ग्रीडी हैं हम, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अच्छा चलो कोई थोड़े थोड़े पैसे बचा के रखूं, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी ना तो उसमें पैसा लगाऊंगा। जी तो जिसको बिल्कुल है हमने सर। स्पेकुलेटिव नीड्स कहा, जिसमें हमने स्पेकुलेटिव नीड्स का, ठीक है। और जो जी फोर्थ वन है वो एक एक्सेप्शनल नीड है। अगर आप बैंक के साथ कारोबार करते हैं, बैंक से पैसा लेना पसंद करते हैं, तो फिर कॉम्पनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट है। अगर आप बैंक से पैसा नहीं लेते तो कोई कॉम्पनसेटिंग बैलेंस रिक्वायरमेंट के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए। इज इट क्लियर? जी सर। जी सर। चले, थैंक यू वेरी मच। चले, अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि व्हाटसोएवर द कैश व्हिच आई हैव केप्ट इट फॉर माय सेफ्टी नीड, ठीक है। तो वो जो कैश है वो मैंने कहाँ पे रखा हुआ है? आई केप्ट दैट कैश ईदर इन माय वॉलेट, ठीक है, और इन माय लॉकर्स, ठीक है, और यू कैन से दैट इन माय ट्रंक, ठीक है, और इन माय बैग। तो इस किस्म का मैंने काम किए हुए, मैंने पैसा कहीं ना कहीं छुपा के रखा हुआ, ठीक। लेकिन if I'm going to hold a cash in this way, then what is going to be happen, that cash is going to lose its value with the passage of time. So if I am interested to preserve, if at least if I am interested to preserve the value of money, then what should I do? Then the best option is that why not I should invest my resources in any marketable security. अब ये marketable security क्या होता है? Marketable security is the instrument of the money market. So mean that I want to invest this cash into any instrument of the money market in order to get a positive return on my investment. अब हमारे पास we are having the two sorts of market. One is referred as money market and second is referred as capital market. Money market deal with those instruments which are having a maturity of less than or equal to 1 year, whereas the capital market deal with those instruments which are having a maturity of greater than 1 year, and it also deal with those instruments which don't have any maturity. Just like short example, money market के जो instrument in which one is a treasury bill. Treasury bill is technically issued by the government in order to borrow the money either from the banks or from the public. Okay. Second important thing is that is your commercial paper which are issued by the companies, okay. So the commercial papers are issued by the companies, the company issuing these commercial paper at discount and redeem, however these commercial papers are redeemable at par price. Then the third instrument is that is note receivable, just like the concept of promissory note, okay.
The next is the concept of repos, that is repurchase agreement. Repurchase agreement mean that today I am going to sell a product with this intention that I will buy it back in the future at a higher price. So this is called as a repurchase agreement. So these are some of the instruments of the money market. Okay. इसी तरह से हमारे पास कैपिटल मार्केट है. कैपिटल मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें हमारे पास वी हैव द कॉर्पोरेट बॉन्ड, वी हैव द प्रेफर्ड स्टॉक, वी हैव द कॉमन स्टॉक. फाइन. तो ये जो इस किस्म की जो चीजें हैं ये बुनियादी तौर पे क्या हैं? ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है दिस इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, whereas the preferred stock is the equity instrument and common stock is also the equity instrument. ठीक है. माशाल्लाह आप सब लोग एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट हैं. ठीक है. तो यू आर हैविंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट व्हाई पीपल prefer to buy the shares of the different companies. Why people prefer to buy the shares of the different companies. ठीक है. So the people prefer to buy the shares of any company with two different motives. And with the one motive is that they are interested to increase their current income in the form of the dividend distributed by the companies. And second thing is that they simply would like to attain, they are simply interested in the capital gain. They prefer to buy the securities at low price, but in future they would like to sell it at a higher price and they want to attain a capital gain in this deal. तो ये हमारे पास बुनियादी तौर पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं. ठीक है. लेकिन जब बात आती है ना वर्ड मार्केटेबल का मतलब ये है कि we prefer to invest our resources in that instrument to whom we can convert it into cash in a short span of time and without loss in value. कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाएं, ठीक है, कि जिसको हम जल्द अज जल्द कैश में कन्वर्ट कर लें और इस प्रोसेस में हमें नुकसान भी ना हो. तो ये बेसिक फिलॉसफी है. दैट इज योर अकाउंट, दिस इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ योर मार्केटेबल सिक्योरिटीज. ठीक. तो हमने क्या कहा था कि वो पैसा जो मैंने सेफ्टी पर्पस के लिए रखा हुआ है, अगर वो पैसा मेरी जेब में पड़ा रहेगा then that पैसा will lose its value with the passage of time. Why? Because we are living in an economic system where there is a concept of the inflation. Inflation means that is too much money is going to chase the too few goods. In other words, we can say that a general rise in the prices of the commodities, this is called as your inflation. तो मैं ये कहता हूं कि पहले मैं 10 रुपए की 10 चीजें लेता था, आज भी मेरे पास 10 रुपए हैं, लेकिन आज मुझे 10 रुपए की 8 चीजें मिलती हैं. तो अगर वो पैसा जो मैंने अपने वॉलेट के अंदर रखा है वो 10 तो 10 ही रहेंगे, वो 10 तो कभी 11 नहीं होंगे, क्योंकि वो तो वॉलेट में पड़ा हुआ है. ठीक है. एंड दैट मनी इज गोइंग टू लूज इट्स वैल्यू बिकॉज ऑफ द फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन. ठीक है. बिकॉज ऑफ द फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन. So if I would like to save myself from that inflation, then what should I do? Why not I should invest this money into the marketable security? अब यहाँ पे मेरे पास दो रास्ते हैं. एक रास्ता है कि one of the option is that I don't want to take any risk. मैं किसी रिस्क को नहीं लेना चाहता, मुझे डर लगता है. ठीक है. If I don't want to take any risk, then what should I do? I can invest my resources in the government instruments. मैं गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगा देता हूँ. तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्या होता है? देयर इज नो रिस्क, सो द रिटर्न इज आल्सो लो. ओके. अब मैं कहता हूं कि नो, आई हैव एन एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क, आई वांट टू टेक द रिस्क. ओके. बट आई डोंट वांट टू टेक द सिग्निफिकेंट रिस्क. ओके. तो मुझे कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाती हैं जो रिस्कियर हैं. ठीक है. लेकिन उसमें हाई रिस्क नहीं है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, लेकिन रिस्क जरूर है उसके अंदर. ठीक है. तो इसका मतलब है आई कैन चूज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बेस्ड ऑन माई एटीट्यूड टुवर्ड रिस्क. So there are certain instruments which do not contain any kind of risk, which is zero risk, just like the instruments issued by the government. ठीक है. However, the instrument issued by the companies, they contain the risk. They contain the risk. Okay. तो मैं चाहूँ तो मैं उधर भी पैसा लगा सकता हूँ. ठीक है. और मैं क्यों उधर रिस्कियर इन्वेस्टमेंट की तरफ जाऊंगा? Because I want to get a more return on my investment than the return offered by the government. Okay. तो ये हमारे पास है. अब मार्केटेबल सिक्योरिटी के हवाले से मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेने लगा हूँ शेयर्स की. ठीक है. तो शेयर्स बुनियादी तौर पे दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट, दिस इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ मनी मार्केट. ठीक है. तो मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है. लेकिन मैं इसे क्यों डिस्कस करने जा रहा हूँ? व्हाई वुड लाइक टू टेक द एग्जांपल ऑफ द शेयर एज अ मार्केटेबल सिक्योरिटी? बिकॉज
because we simply can buy the share at any time and we can sell that share at any time, mean that this is a liquid security. We simply can make a telephone call to our broker to buy it and they're ready to buy it. And whenever we are going to place an order to sell it, so they are ready to sell it. Okay, so mean that I can convert my investment into cash instantly. So that's why I would like to take the example of this shares. However, share is the instrument of capital market, it is not the instrument of money market. जी हाँ जी, यहाँ तक बातें क्लियर हैं जी? यस सर। जी जी सर। ठीक है, तो मसला क्या था? मैं ये सिंपली सादा सादा आपको पढ़ा भी सकता हूँ, सामने एंट्रीज पड़ी हैं, 4 एंट्रीज आपको करा सकता हूँ, दैट्स नॉट एन इशू। तो हमारे पास क्या था कि हमने कैश अपनी जेब में रखा हुआ है और वो जो कैश है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी कदर को खो रहा है। अगर हम चाहते हैं वी वांट टू प्रिजर्व द वैल्यू ऑफ मनी, then what should we do? We have an option that we can invest our resources into the marketable security to get a positive return on the unutilized cash. जी आमिर खान क्या कहते हैं? सर ये जो आपने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट की सर बात की थी, ये सर इन दोनों में डिफरेंस तो एक आपने कहा था कि एक लेस देन और इक्वल 1 ईयर की बात की थी सर आपने। कैपिटल मार्केट में 1 साल से ज्यादा का टाइम लग जाता है, लेकिन ये जो कैपिटल मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स हैं ये तो आप किसी भी वक्त लेके बेच सकते हैं। तो ये वो वाली बात कुछ फिर समझ नहीं आई सर, काइंडली अगर बेटा बात ये है ना, कैपिटल देखें बात है मार्केटेबल सिक्योरिटी का नाम है मार्केटेबल। मार्केटेबल का मतलब होता है दैट एनी इंस्ट्रूमेंट टू होम यू कैन बाय और सेल एट एनी टाइम व्हेनेवर यू लाइक। ठीक है, तो ये जो शेयर्स होते हैं ये ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या है? ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है। इसे कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज देयर इज नो मैच्योरिटी ऑफ द, यू कैन से दैट इज योर कॉमन स्टॉक, देयर इज नो मैच्योरिटी ऑफ द कॉमन स्टॉक। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इसको हम क्यों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इसलिए है कि वी कैन प्लेस एन ऑर्डर टू अ ब्रोकर, द ब्रोकर कैन बाय और कैन सेल द सिक्योरिटीज इंस्टेंटली। तो इसका मतलब ये इंस्टेंट सिक्योरिटी है, तो इस वजह से हम इसे मार्केटेबल सिक्योरिटी की कैटेगरी के अंदर लेके आ रहे हैं। जी आयशा अंसारी क्या कहती हैं? सर ये जो आपने टॉपिक्स पर मतलब वर्ड्स बोले थे कैपिटल स्टॉक और कॉमन स्टॉक और कॉर्पोरेट स्टॉक, ये किस चीज़ के इंस्ट्रूमेंट्स हैं? क्या है सर ये ना आपने बताए थे कैपिटल स्टॉक्स, कॉमन स्टॉक्स, कॉर्पोरेट स्टॉक्स, फिर आपने बताया था किस चीज़ की मतलब टाइप्स हैं या पता नहीं किस चीज़ के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। हाँ, ये बेसिकली ये जो हमारे पास ये जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होता है ना, ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। प्रेफर्ड स्टॉक जो है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। कॉमन स्टॉक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। इसी तरह से कमर्शियल पेपर जो है ये बुनियादी तौर पे जो है ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। ट्रेजरी बिल डेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, प्रोमिसरी नोट डेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे ये है, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं जी। जी आमिर क्या कहते हैं, बोलें जल्दी से। सर ये जो नेशनल प्राइस बॉन्ड होते हैं जो गवर्नमेंट इशू करती है और वो स्पेशल जो प्राइस बॉन्ड होता है ना, वो प्राइस बॉन्ड याद रखना है, प्राइस बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ कैश, प्राइस बॉन्ड इज नॉट अ डेट इंस्ट्रूमेंट। जो सर आप प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं जो रिसेंटली इन्होंने बंद किए थे और प्रीमियम पे इशू करते हैं, वो आएंगे इनमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज में? भाई कॉर्पोरेट बॉन्ड आएगा, गवर्नमेंट बॉन्ड आएंगे, लेकिन ये जो प्राइस बॉन्ड है ना ये नहीं आएगा। प्राइस बॉन्ड पे इनाम निकलता था, प्राइस बॉन्ड पे इनाम निकलता भाई। जी जी और जी प्राइस बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ कैश। आप दूध नहीं लेने के लिए गए मार्केट में, आपने कहा ओ यार मेरे पास तो कैश नहीं है, तो उसने कहा जी फिर अब कुछ और है, कहना लगा हाँ मेरे पास 100 रुपए का प्राइस बॉन्ड है, कहते दे दे कोई बात नहीं चलेगा। राइट सर, राइट सर। हाँ, लीगल टेंडर ये बेसिकली तो वैसे तो करेंसी नोट होते हैं लीगल टेंडर में, लेकिन इनको बस कैश इक्विवेलेंट के तौर पे माना जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, लेकिन हर शख्स इसे एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जो लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं वो ठीक है, क्योंकि आप इसे स्टेट बैंक को दे के पैसे वापस ले सकते हैं जी। चलें जी आगे। हाँ जी चलें आगे। जी जी जी। चलें, अब यहाँ पे अपने चीजों को जल्दी जल्दी से सम अप करें। क्या कहते हैं आमिर शहजाद, आप क्या कहते हैं, कोई सवाल है आपका? नो सर, नो सर, पहले अच्छा चलो फिर हार्ट डाउन कर लो ना अपना।
चलें, अब तक जो हमारे पास जो नटशेल अभी डिस्कशन हमारी जो डेवलप हुई है वो क्या है कि हमने वो कैश जो सेफ्टी पर्पस के लिए रखा था, हम उस कैश को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना चाहते हैं। अगर हमने उस कैश को इन्वेस्ट ना किया तो वो कैश अपनी कदर को खो देगा, और अगर हम इस वैल्यू को प्रिजर्व करना चाहते हैं तो देन वन ऑफ द गुड ऑप्शन व्हिच इज अवेलेबल विद अस इज दैट व्हाई नॉट वी शुड इन्वेस्ट आवर रिसोर्सेज इनटू एनी मार्केटेबल सिक्योरिटी। अब मार्केटेबल सिक्योरिटी के हवाले से जो मैं एग्जांपल है वो शेयर्स की लेने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, यू कैन नॉट डायरेक्टली बाय द शेयर्स, शेयर इज अ मोड ऑफ इक्विटी फाइनेंस, शेयर इज अ मोड ऑफ इक्विटी फाइनेंस, ठीक है। लेकिन जो शेयर्स है बुनियादी तौर पे दिस इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट, ठीक है। और ये जो हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ना, इसे हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को क्या बोलते हैं? दिस इज दी कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो ये बुनियादी तौर पे यहाँ पे जो है डिफरेंट कंपनीज के TFC सेल होते हैं, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट सेल होते हैं, जिसे हम कॉर्पोरेट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह से जो है डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स यहाँ पे ट्रेड होते हैं। तो if we want to buy the share, if we want to buy the bond, then first of all we have to take the services of the broker, ठीक है। और ब्रोकर के साथ हमें क्या करना पड़ता है? We are required to open an account with the broker in order to establish a legal relationship. Then we have to put some money in the account, and then that broker is responsible to buy and sell the securities as per your advice, as per your instruction, and the broker is going to charge a commission as a reward of their productive services, okay। तो इसमें हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटी के हवाले से हमें जो 4 एलिमेंट्स हैं जिनको हमने देखना है, देयर आर 4 बेसिक इवेंट रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी। नंबर 1 इज the purchase of investment, second thing is the receipt of dividend or interest revenue, third is the sale of investment, and the fourth thing is that is end of period adjustment। ये 4 हमें एंट्री सीखनी है इसके हवाले से कि जब हम खरीदारी करें तो फिर एंट्री क्या होगी, जब हम इसको बेचें फिर एंट्री क्या होगी, अगर हमें कोई रेगुलर इनकम होती है फिर एंट्रीज क्या होंगी, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट इज द कॉन्सेप्ट इज दैट इज एंड ऑफ पीरियड एडजस्टमेंट, ठीक है। अब परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी के हवाले से हमारे पास एग्जांपल है, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर ओरिजिनली रिकॉर्डेड एट कॉस्ट व्हिच इंक्लूड एनी ब्रोकरेज कमीशन। तो इसका मतलब है कि दैट इज वी नॉट ओनली हैव टू पे अ प्राइस टू बाय द शेयर, but also we have to pay certain charges, and that charges will also become the part of the cost of investment. To illustrate, assume that the Foster Corporation purchased as a short-term investment of 4,000 shares of the Coca-Cola company. अब क्या करने जा रहे हैं? फोस्टर कॉर्पोरेशन है, ठीक है, उनके पास कुछ पैसे पड़े हुए हैं and they would like to use this पैसा in order to buy the shares of the Coca-Cola company on December 1. Foster paid $48.98 per share plus a brokerage and commission of $80. The entry to record the purchase of these shares will be this one, that is marketable securities debit and cash credit. अब ये इसके अंदर क्या चीजें हैं? 4000 शेयर हैं, ठीक है। 4000 शेयर को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी एक शेयर की कीमत है $48.98 का शेयर है, तो 4000 शेयर्स को 48.98 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस इसमें $80 का ब्रोकरेज एंड कमीशन ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये एक शेयर जो है 49 रुपीज का पड़ रहा है कि $80 जो आपने पे किए हैं वो 4000 शेयर का ब्रोकरेज है, ठीक है। इसका मतलब है आपको 2 पैसे पर शेयर जो है ब्रोकरेज एंड कमीशन पे करना पड़ रहा है। तो 48.98 का शेयर था, 2 पैसे ब्रोकरेज एंड कमीशन है, इसमें ऐड कर दें तो ये जो शेयर आपको पड़ रहा है वो कितने का है? $49 का पड़ रहा है। तो अब आप क्या लिखेंगे? दैट मार्केटेबल सिक्योरिटीज डेबिट एंड कैश क्रेडिट, एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी विल बी कंसिडर्ड एज योर एसेट, विल बी कंसिडर्ड एज योर इन्वेस्टमेंट। जी हाँ जी, यहां तक बताएं, मुझे गो अहेड देंगे, ये बात समझ लग गई आपको? जी सर। चलें ठीक है जी। उसके बाद उसने कहा सेकंड में कहता है रिकग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू। तो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि देयर आर 2 मेन पर्पसेस टू इन्वेस्ट द रिसोर्सेज इन द शेयर। द वन थिंग इज वी आर इंटरेस्टेड इन द रेगुलर इनकम। Whenever we are going to buy the shares, we will become the owner of the entity, and being as an owner, we have a right to participate in the company's profitability. And the part of profit which is distributed by the company among the shareholder is called as dividend. It's called as dividend.
So dividend is the fraction of profitability which is distributed among the shareholder. तो जिस वक्त आप शेयर खरीदते हैं तो फिर आप कंपनी के मालिक बन जाते हैं, और मालिक बनने के बाद कंपनी के मुनाफे पे आपका हक डेवलप हो जाता है। ओके, तो इसका मतलब है कि इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट सम रेगुलर इनकम, दिस इज वन ऑफ द मोटिव टू बाय द शेयर ऑफ एनी कंपनी। अब वो कहता है जी, एंट्रीज टू रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रेवेन्यू टिपिकली इन्वॉल्व डेबिट टू कैश एंड क्रेडिट टू ईदर इंटरेस्ट रेवेन्यू और डिविडेंड रेवेन्यू। अब यहाँ पे ये है कि अभी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में, तो यहाँ पे वर्ड आएगा डिविडेंड इनकम। अगर आप डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि लेट्स सपोज दैट यू हैव परचेज द कॉर्पोरेट बॉन्ड ऑफ अ कोका कोला कंपनी, तो फिर वो उस कॉर्पोरेट बॉन्ड पे आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है, उस पर डिविडेंड इनकम ना मिलता। डिविडेंड का वर्ड शेयर होल्डर्स के लिए यूज किया जाता है, इंटरेस्ट का वर्ड डेट होल्डर्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलें, अब वो कहता है टू इलस्ट्रेट अस्यूम दैट ऑन December 15 फोस्टर कॉर्पोरेशन रिसीव्स अ $0.3 पर शेयर डिविडेंड ऑन इट्स 4,000 शेयर्स ऑफ कोका कोला। द एंट्री टू रिकॉर्ड द रिसीट इज, जी 4,000 शेयर आपने खरीदे थे, तो कंपनी ने 30 पैसे पर शेयर आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, तो कितने पैसे आपके पास आए? 1200 आए। तो आपने कहा कैश डेबिट एंड डिविडेंड रेवेन्यू लिख लें, डिविडेंड इनकम लिख लें। तो कैश इज गोइंग टू बी डेबिट एंड डिविडेंड रेवेन्यू इज गोइंग टू बी क्रेडिट। अभी कल हमने इनकम स्टेटमेंट पढ़ी थी, ठीक है, तो वहां पर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था रेंट इनकम का, ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ द डिविडेंड इनकम। तो डिविडेंड इनकम क्या होगी? दिस विल बी कंसीडर्ड एज अवर अदर इनकम। व्हाई वी कॉल इट एज एन अदर इनकम? बिकॉज दिस इज द इनकम व्हिच वी हैव जनरेटेड बाय इन्वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज इन सम अदर बिजनेसेस। This income we haven't generated it from our trading activity. Rather, we have invested the business money in some other business for the sake of diversification. For the sake of diversification. तो हमने diversification purpose के लिए अपने रिस्क को स्प्रेड करने के लिए अपने ही कारोबार के पैसे को किसी और कारोबार में लगाया। ओके, तो उस प्रोसेस में आमदनी हुई तो 1200। तो ये जो 1200 रुपए हमारी इनकम स्टेटमेंट में कहां पे आएगा? इट विल बी कंसिडर्ड एज द अदर इनकम। ओके जी, यहां तक क्लियर है जी? चले, अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब देखें बात ये थी कि हमारे पास जो सरप्लस कैश पड़ा हुआ था, हमने उस सरप्लस कैश को मार्केटेबल सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है। हमने अपनी प्लान्ड पेमेंट के लिए जो कैश रखा है उसको इन्वेस्ट नहीं करना। अब देखें ना, बात है मुझे सैलरी मिली और मुझे पता है कि मैंने इस सैलरी से अपने किचन का राशन लेके आना है, तो क्या मैं उस पैसों से शेयर्स को खरीद लूंगा? नो सर, नो। तो इसका मतलब है कि वो पैसा जो मैंने अपनी जरूरियात के अलावा रखा हुआ है, आई वॉन्ट टू यूटिलाइज दैट मनी प्रोडक्टिवली। ठीक है, तो whenever there is a need for it, जब मुझे उस पैसे की जरूरत होगी तो फिर मैं क्या करूंगा? I will convert my investment into cash। तो पहले मैंने अपने सरप्लस कैश को इन्वेस्टमेंट में लगाया, और जब मुझे जरूरत पड़ी तो नाउ आई हैव टू लिक्विडेट दैट इन्वेस्टमेंट एंड आई हैव टू कन्वर्टेड दैट इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। अब इसके हवाले से है, दैट इज कॉल्ड एज अ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब वो कहता है व्हेन एन इन्वेस्टमेंट इज सोल्ड a gain or loss often result. If an investment is sold for more than the cost basis, a gain is recognized, whereas selling of an investment from amount less than its cost basis result in a loss. So these items appear in other income expense, other income or other expense section of the income statement। जी ठीक है जी, तो उसने कहा कि जी देखें बात है कि अगर आपने जिस भी कीमत पे शेयर्स को खरीदा था, आप उसको जब जरूरत पड़ेगी तो बेच देंगे। तो जब हम बेचने के लिए जाएंगे तो उस दिन उस पॉइंट इन टाइम पे उस शेयर की मार्केट प्राइस क्या चल रही है, वी डोंट नो अबाउट दैट। ठीक है, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर माइट बी मोर देन द परचेज प्राइस, द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर माइट बी लेस देन द परचेज प्राइस। बट इफ यू आर इन नीड ऑफ मनी एट दैट पॉइंट इन टाइम, either you will be having a gain or you will be having a loss on the sale of, you can say that your marketable security। ठीक है, अब वो कहता है टू इलस्ट्रेट अस्यूम दैट द फोस्टर कॉर्पोरेशन सेल्स 500 शेयर्स ऑफ इट्स कोका कोला स्टॉक ऑन December 18 फॉर $50.04 पर शेयर, लेस $20 ब्रोकरेज एंड कमीशन। जी, अब वो कहता है जी कि हमने जो है ब्रोकर को कहा कि भाई हमें पैसे की जरूरत है, हमारे 500 शेयर बेच दो। उसने कहा जी करंट प्राइस इस वक्त चल रही है 50 रुपए 4 पैसे। हमने इस शेयर को कितने का खरीदा था?
₹48.98 का खरीदा था, लेकिन हमारा 2 पैसे कमीशन भी था, तो हमें ये शेयर पड़ रहा था ₹49 का। कितने का? 49 रुपीज का। अभी इसकी करंट मार्केट प्राइस है कितनी है? ₹50.04। ठीक है, अभी आपको इसमें $20 का आपको ब्रोकरेज भी देना है, तो $20 को 500 शेयर के ऊपर डिवाइड करें, देखें कितनी बनती है जी आपको। जी कितने पैसे बनते हैं, जरा इसको कैलकुलेटर चलाइएगा। $20 को 500 शेयर्स पे डिवाइड कर दें, 10 पैसे। हैं जी, कितने पैसे बनते हैं जी? 0.04, 40 पैसे। देख लो, $20 डिवाइडेड बाय 500, 0.04, 4 पैसे हैं जी। ठीक है, तो इसमें से ₹50, 4 पैसे में से 4 पैसे कमीशन निकल गया, तो आपको क्या मिला? ₹50 नेट। ठीक है, आपकी खरीदारी कितने की थी? ₹49 की। पर शेयर पे कितना बेनिफिट हुआ? ₹1। ₹1। ठीक है, तो 500 शेयर पे कितना बेनिफिट हुआ? 500। तो अब वो कहता है कि जनाब हमारे पास जो कैश आएगा वो कितना है? हमारे पास कैश आया 500 शेयर्स, ₹50 के हिसाब से ₹25,000, लेकिन हमारे मार्केटेबल सिक्योरिटी की जो वर्थ है वो 24,500 है। वो हमारा 500 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 49, 500 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 49, तो ये 24,500 हो गया। और डिफरेंस इज ट्रांसफर्ड इनटू एन अकाउंट दैट इज कॉल्ड एज गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये जो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इसे कैपिटल गेन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज अ कैपिटल गेन। जी हाँ भाई, किस किस को समझ लगा, किसको नहीं समझ लगा, जल्दी जल्दी बोले। जी ठीक है सर। राइट सर ये बस ये सर सॉरी बस ये आमिर भाई जरा जोर से बोलें, जोर से, काइंडली, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर इसको कैपिटल गेन क्यों बोलेंगे सर, बस ये सवाल है सर। शाबाश शाबाश, चले अच्छी बात है। ठीक है, 2 किस्म के गेन होते हैं, वन इज रेफर्ड एज द ऑर्डिनरी गेन एंड सेकंड इज रेफर्ड एज योर कैपिटल गेन और द कैपिटल लॉसेस। ठीक है, capital gain and capital losses are going to be realized at that point in time whenever we are going to either sell any asset. If we are going to sell an asset more than the purchase price, it is called as capital gain. ठीक है, and if we are going to sell an asset less than the, you can say that is the purchase price, then it is called as the capital loss. ठीक है, अभी आजकल अगर आप प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी के लेन देन के प्रोसेस में वो कहता है जी कि जो आपने जो गेन टैक्स होगा जी, वहाँ यहाँ पे हमारे यहाँ ना है, हमारे यहाँ एक वर्ड यूज होता है, कहता है जी गेन टैक्स भी आपको देना पड़ेगा जी। अब वो बेसिकली उसे क्या पता, उस गधे को पूछे भाई ये गेन टैक्स क्या होता है, तो वो उसको नहीं पता ये कैपिटल गेन है या क्या चीज है। भाई ये गेन टैक्स है जी, है। वो गेन टैक्स इसीलिए होता है कि मैंने जमीन कम कीमत पे खरीदी थी, बेची ज्यादा कीमत है, जो इसका डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल गेन। ठीक है, तो इस कैपिटल गेन के ऊपर जो रेट ऑफ टैक्सेस होते हैं वो ऑर्डिनरी गेन से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अभी जस्ट लाइक मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं कि 2007-8 में जिस वक्त मुशर्रफ साहब का दौर था, तो उस वक्त इन्होंने शौकत अजीज को एज अ फाइनेंस मिनिस्टर लगाया। ठीक है, तो शौकत अजीज ने जो स्टॉक मार्केट थी उसकी ट्रेडिंग एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए कैपिटल गेन टैक्स को 0 कर दिया। उसने कहा जी अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द इंडिकेटर बाय व्हिच वी हैव टू असेस द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, देन इट इज बेटर दैट वी शुड ब्रिंग द टैक्सेस ऑन कैपिटल गेन इक्वल टू 0 so that the people should take active part in buying and selling the share। तो लोगों को लालच आ गया, लोगों ने कहा भाई खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो। आपने ₹20 10 पैसे पे शेयर खरीदा, ₹20 20 पैसे पे बेच दिया, 10 पैसे पर शेयर आपको प्रॉफिट हो गया, उस पर कोई टैक्स ही कोई नहीं था। ठीक है, तो ये जो बुनियादी तौर पे होता है कि दैट इज द सिंपली द डिफरेंस बिटवीन द सेल प्राइस एंड परचेज प्राइस, दिस इज कॉल्ड एज योर कैपिटल गेन। जी, और ये जो होता है जस्ट लाइक जिस नाम में सैलरी इनकम होती है, तो ये हमारा ऑर्डिनरी इनकम होती है। ऑर्डिनरी इनकम पे रेट ऑफ टैक्सेस डिफरेंट होते हैं। जी, एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन? जी वली भाई क्या कहते हो? सर पहले जो आपने ऊपर वाली वली जोर लगा, जोर जितनी जान है ना तेरे अंदर उतनी जोर लगा। सर जो पिछली आपने रीडिंग बताई थी उसमें आपने डिविडेंड रेवेन्यू को क्रेडिट में लिखा था, उसकी क्या रीजन थी सर?
डिविडेंड इनकम है ना यार, इनकम जिस तरह सेल्स है, रेंट इनकम है, तो डिविडेंड हमारी इनकम है ना, तो इनकम ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, खत्म होगी बात। अच्छा, और सर ये गेन ऑफ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ये क्यों क्रेडिट में है? ये भी हमारी इनकम है। जो लॉस होता है वो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। ओके सर। एंड इनकम ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस whereas the losses always have a debit balance। राइट सर, ओके। ठीक है, चले। हाँ भाई, क्लियर हो गया? ओके। हाँ, मार्केटेबल सिक्योरिटी हमारा करंट एसेट है। क्यों करंट एसेट है? उसकी वजह यह है कि whenever there is a need for cash we have to sell it into the market, we can easily be able to convert it into cash, so these are also called as the liquid asset। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर लिक्विडिटी, बिकॉज ऑफ देयर कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। चलें अब नेक्स्ट केस देखते हैं। नेक्स्ट केस क्या है? ये तो गेन का केस था। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक चीज आपने अपने दिमाग में रखनी है, वो दिमाग में हमने ये रखनी है कि जब हमने सिक्योरिटीज को खरीदा था तो हमने ब्रोकरेज एंड कमीशन अदा किया था। तो उस वक्त जब खरीदा था तो जो ब्रोकरेज एंड कमीशन को अदा किया था उसको हमने परचेज प्राइस में ऐड किया था। लेकिन जब हमने सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचा फिर भी हमने ब्रोकरेज एंड कमीशन अदा किया। लेकिन अब जो सेल प्राइस के प्रोसेस में पैसा आ रहा है उस पैसे में से जो ब्रोकरेज हमने दिया है उसको माइनस करके नेट प्रोसीड्स को लेना है। ये होश से देखना है कि जब खरीदेंगे तो कमीशन पेड विल बिकम द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट, जब बेचेंगे तो जो नेट प्रोसीड्स होंगी वो वैल्यू हमारे लिए मैटर करती है। हमारे लिए ये मैटर नहीं करता कि हमें जो है कितने का हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने आफ्टर पेइंग द ब्रोकरेज हमने जो है वो अमाउंट लेनी है। तो हमने 50 रुपए 4 पैसे की सेल प्राइस थी जिसमें से 4 पैसे ब्रोकरेज दिया तो हमें 50 रुपए मिले। ठीक है, 500 शेयर को 50 से मल्टीप्लाई किया तो 25,000 कैश आया। लेकिन हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी है? 49। इस 49 में 2 पैसे कमीशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जरा इसको गौर से देखना आपने। उसके बाद हमारे पास है जी, अब वो एक नेक्स्ट केस है। पहले में गेन उसने सिखाया कि अगर गेन हो, इसी तरह से समटाइम वी आर गोइंग टू सेल द मार्केटेबल सिक्योरिटी इन द मार्केट एंड वी मे हैव अ लॉस। Assume that Foster Corporation sells an additional 2,500 share of its Coca-Cola stock on December 27 for 48.01 per share less a $25 brokerage and commission। जी, अब हम 25 रुपए दे रहे हैं 2500 शेयर पे। देखें कि पर शेयर कितना ब्रोकरेज बनता है जी। 25 डिवाइडेड बाय 2500, 1 पैसा पर शेयर। ठीक है, अब वो क्या आता है? सेल प्राइस कितनी है? 48 रुपए 1 पैसा है। 48 रुपए 1 पैसे का ब्रोकर बेचेगा, उसमें से 1 पैसा अपना निकाल लेगा, हमें क्या देगा? 48 रुपए। ठीक है, अब हमने शेयर को कितने का खरीदा था? 49 का। तो हमें पर शेयर लॉस कितना हो जाएगा? $1 का। जी, क्लियर? जी सर। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस में देखें, अब आप जो है 2500 को मल्टीप्लाई करते हैं 48 के साथ। ठीक है, 2500 शेयर्स को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 कैश आ जाएगा। लेकिन मार्केटेबल सिक्योरिटी जो आपने दी है वो 2500 शेयर है 49 के हिसाब से, 49 के हिसाब से 1,22,500 बनता है। तो इसका मतलब है हमने 1,22,500 की चीज को मार्केट में कितने का बेच दिया? 1,20,000 का। डिफरेंस इज ट्रांसफर्ड इनटू एन अकाउंट दैट इज कॉल्ड एज अ लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये लॉसेस एक्सपेंसेस ऑलवेज हैव अ डेबिट वेयर एज गेन, ठीक है, एंड डिविडेंड इनकम दे आर ऑलवेज बी क्रेडिटेड। तो लॉस हमें कितना हो गया? 2500 रुपए का नुकसान हो गया जी इस डील के अंदर। ठीक है, तो ये एक और केस था कि हाउ वी हैव टू रिकॉग्नाइज द लॉसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जी, इज इट क्लियर? यस सर। चले, अब हमारे पास लास्ट केस है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूर एडजस्टिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज टू मार्केट वैल्यू। ठीक है, आज हम बिल्कुल एक फ्रेश कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और फ्रेश कॉन्सेप्ट बुनियादी तौर पे हमारे पास क्या है? हमने एक चीज पढ़ी चैप्टर नंबर 1 में, हमने कहा एसेट्स आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एट, जी बताएं, भूल गए? कॉस्ट प्राइस। है जी, कॉस्ट प्राइस।
कॉस्ट Cost. प्राइस, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो हमने वहां पे देखा था, हमने कहा था कि दैट इज एसेट्स आर ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एंड मेंटेन इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट, एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट। अभी कल मैंने पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी आपको बना के दिखाया था, तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में हमारे पास वैल्यू ऑफ स्टोर इक्विपमेंट कितनी थी, 18,000, जबकि उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, 3,000। तो इसका मतलब है कि हमने उसको लिखा हुआ है कि ये 18,000 का एसेट खरीदा था, ठीक है, लेकिन इसमें से कितना इस्तेमाल किया, 3,000 का। तो ये एसेट आपकी किताबों में उस वक्त तक 18,000 का नजर आएगा जब तक ये एसेट कंप्लीटली वाइप आउट आपकी किताबों में से नहीं हो जाता। ठीक है, तो नाउ टुडे यू हैव टू लर्न अ वन न्यू कॉन्सेप्ट, एंड द कॉन्सेप्ट इज दैट मार्केटेबल सिक्योरिटी इज एन एक्सेप्शनल एसेट व्हिच यू हैव टू रिकॉर्ड इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द करंट मार्केट प्राइस व्हेन यू आर गोइंग टू क्लोज योर बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या कहता है मार्केटेबल सिक्योरिटी के बारे में, क्या कहता है कि मार्केटेबल सिक्योरिटी इज एन एक्सेप्शनल एसेट व्हिच इज रिकॉर्डेड इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द करंट मार्केट प्राइस। बस अब वही हिस्टोरिकल और करंट का फर्क आ गया। हाँ, हिस्टोरिकल में तो हिस्टोरिकल में तो पुरानी प्राइस होगी, मार्केटेबल सिक्योरिटी के अंदर जो है, मार्केटेबल सिक्योरिटी के अंदर ताल्लुक करंट मार्केट प्राइस का, उसकी लॉजिक है, यही लॉजिकल नहीं है, लॉजिक है। देखे ना, बात है। अब शेयर की प्राइसेस डेली बेसिस पे कितना उतार चढ़ाव आता है सर उसकी तो कोई पता नहीं लगता। कोई पता नहीं है ना। तो अब ये जी देखें, सर। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ जी, मैंने जो है यूनिलीवर का शेयर खरीदा, 26,000 रुपए का था जब मैंने खरीदा, आज उसकी कीमत 16,000 रुपए की है। तो बताएं कि क्या मैं उसको अपनी किताबों में 26,000 रुपए का रिकॉर्ड करूं? अगर मैं उसे 26,000 रुपए का रिकॉर्ड करूंगा तो लोग मुझे बेवकूफ कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जी सर बिल्कुल। ठीक है ना, वो कहेंगे भाई ये कौन से, किस दुनिया में रहते हो, 26,000 रुपए का तुमने अपनी बैलेंस शीट में एक शेयर लिखा हुआ है, मार्केट में सिर्फ वैल्यू तो इसकी 16,000 रुपए है। इसका मतलब है दिस इज अ रिडिकुलस वैल्यू व्हिच यू हैव मेंशन इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इस वजह से यहाँ पे कानून क्या आया कि मार्केटेबल सिक्योरिटी इज एन एक्सेप्शनल एसेट व्हिच इज रिपोर्टेड इन द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द करंट मार्केट प्राइस, mean that the date on which you are going to close your books of account, at that moment you have to analyze that what is its current market price। तो जो करंट मार्केट प्राइस है और इस वक्त जो शेयर्स बचे हुए हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो दिस इज द प्राइस एट विच यू हैव टू रिपोर्ट द एसेट इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। अब आप देखें, हमने टोटल 4,000 शेयर खरीदे थे, पहले हमने 500 बेचे, फिर हमने 2500 बेचे, ओके। तो हमने टोटल कितने शेयर बेच दिए, 3,000। अब हमारे पास कितने शेयर्स बचे हुए हैं, 1,000, ठीक है। लेकिन उन 1,000 शेयर्स की कॉस्ट कितनी है, 49 के हिसाब से वो हमारे 49,000 के बनते हैं, ठीक है। अब हम चल के देखते हैं कि what is the price of this stock when we have closed the books of account, कि जिस दिन हमने अपनी किताबों को क्लोज किया उस दिन ये कितने का मार्केट में बिक रहा था। चले जी, कहता है टू इलस्ट्रेट लेट अस अस्यूम that the Foster Corporation 1,000 remaining shares of Coca-Cola capital stock have a current market value of 47,000 on 31st December। इसका मतलब 31 दिसंबर को ये शेयर 47 रुपए का चल रहा था, हमने कितने का खरीदा था, 49 का। कितने का खरीदा था, 49 का। तो इसका मतलब है इस डील में नुकसान कितना हो गया, 2,000 रुपए का, ठीक है। अब हमने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द एसेट बाय 2,000। तो हम अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटी का 2,000 से क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, अब डेबिट में कर रहा हूं अनरियलाइज होल्डिंग लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, अनरियलाइज होल्डिंग लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। जी, इस अनरियलाइज होल्डिंग लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको कुछ समझ लगेगा? मतलब ये वो होल्डिंग इन्वेस्टमेंट थी जो कि हमने रियलाइज उस टाइम पे नहीं की थी एग्जैक्टली, क्योंकि करंट के लिहाज से चल रहा था। नहीं वकार, शायद नहीं, मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये बुनियादी तौर पे पेपर लॉस है। इसे क्या बोलते हैं, दिस इज अ पेपर लॉस। यानी कि देखें, मैंने अभी शेयर्स को एक्चुअली बेचा नहीं है, मैंने तो सिर्फ ये देखा कि भाई मार्केट में कितने का चल रहा है। तो उसने कहा जी 49 का खरीदा था, अब 47 का चल रहा है, इसका मतलब है 2,000 रुपए का मुझे पेपर लॉस हो गया। दिस इज नॉट माई एक्चुअल लॉस। Actual loss will be recognized at that point in time whenever I will actually sell the securities in the market. I have not yet sold the security. That is why it is called as the unrealized loss.
मीन सर उस टाइम में अगर वो देख रहा है कि अगर मैं इस वक्त सेल करता हूँ तो मुझे ये लॉस है या प्रॉफिट है, एक्चुअली उसने सेल किए नहीं है, उसके पास है। हाँ, अभी सेल नहीं किए। अभी जिस तरह से देखे ना, शेयर की प्राइस बढ़ जाए तो हमारा खून बढ़ जाता है, मुंह की रंगत चेंज हो जाती है, खूबसूरत खूबसूरत लगने शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं जी मैंने जो है वो 49 का शेयर खरीदा था, आजकल जो है 149 का हो गया। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा फजल है, मैंने कभी गुरूर ही नहीं किया। और वही 49 वाला शेयर 19 रुपए का हो जाए तो वो जो बंदा होता है वो कार्डियोलॉजी में पड़ा होता है, वो कहता है जी बस कुछ ना पूछो जी, मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही। नहीं, नो 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 नो, अभी अब डिविडेंड के साथ कोई कंफ्यूजन ना करो इसको। अभी भाई हमने ये कहा कि जब हम अपनी किताबें क्लोज करने के लिए गए तो 49 का शेयर 59 का भी हो सकता था, 49 का शेयर 47 का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस प्राइस को अपनी कॉस्ट प्राइस के साथ कंपेयर करता हूं तो मुझे 2000 का नुकसान हो गया। लेकिन ये जो नुकसान है ये अनरियलाइज लॉस है, इसको हम पेपर लॉस भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एडजस्टिंग, नॉर्मली मैंने आपको बताया था कि एवरी एडजस्टिंग एंट्री इज हैविंग टू इफेक्ट, वन ऑफ इट शुड बी शोन इन द इनकम स्टेटमेंट एंड अदर शुड बी शोन इन द बैलेंस शीट, बट दिस इज एन एक्सेप्शनल एडजस्टिंग एंट्री वेयर बोथ ऑफ द इफेक्ट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। अब हम क्या करेंगे, 2000 से मार्केटेबल सिक्योरिटी को एसेट में से रिड्यूस कर देंगे और 2000 से अपने कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे एंड योर अकाउंटिंग इक्वेशन विल बी बैलेंस। राइट सर। ठीक है, अब आपका सवाल, अब आपका जो एक सवाल आना चाहिए था कि सर जी ये क्या है। कभी आप कहते हैं कि हर एडजस्टिंग एंट्री के दो इफेक्ट होते हैं, एक इनकम स्टेटमेंट में जाता है, एक बैलेंस शीट में जाता है, और आज आप हम यहाँ कह रहे हैं कि दोनों ही इफेक्ट बैलेंस शीट में दिखाओ। So the answer of this question is, since this is unrealized loss, this is unrealized gain. So that's unrealized losses and unrealized gain will never ever be the part of your income statement. Income statement only contain the data of the realized gain and realized losses. तो realized gain पे taxes देने पड़ते हैं, realized losses पे tax shield मिलती है। और वैसे भी कल को नेक्स्ट पीरियड में सर ये मतलब ज्यादा भी लॉस हो सकता है या गेन में भी जा सकता है? हाँ जी, हाँ मतलब ये बिल्कुल हो सकता है। अभी फिलहाल जब हम क्लोज करने जा रहे हैं ये उस दिन की सिचुएशन है, जब एक्चुअली बेचेंगे तो उस वक्त जो एक्चुअल फायदा या नुकसान होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज रियलाइज। ठीक है, अभी सिर्फ हमने दुनिया को दिखाना है कि वी हैव एडजस्टेड द प्राइस ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट एज पर द करंट मार्केट प्राइस। Since the current market price is lower than the purchase price, that's why we are required to record a loss in our balance sheet. There is a need to reduce the asset by 2000 and there is a need to reduce the stockholder equity by 2000. तो ये बुनियादी तौर पे एक पेपर एंट्री होगी, इस पेपर एंट्री से हमें अपने इफेक्ट को दिखाना है। ठीक है, तो ये हो गया जी। अगर ये लेट्स सपोज अगर ये गेन हो जाता है तो फिर एंट्री क्या करते हैं भाई? अगर वो कहता है ये जो 49 वाला शेयर है ये इस वक्त 55 का हो गया, 6 रुपए पर शेयर, फिर हमें अनरियलाइज गेन हो जाता। ठीक है, फिर हमारी एंट्री क्या होती? मार्केटेबल सिक्योरिटी डेबिटेड बाय 6 एंड अनरियलाइज होल्डिंग गेन ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी क्रेडिटेड बाय 6। ओके, ठीक है, चलें। अब उसके बाद उसने दिखाया, देखें हमारे 49,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, ये देखें। अब बैलेंस शीट के अंदर चल के देखें, करंट एसेट में कैश 50,000 का, मार्केटेबल सिक्योरिटी, उसने कहा भाई इसकी कॉस्ट 49 की है लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है? 47 की। तो अब हमने इस एसेट को अपनी किताबों में 47 का दिखाया है। और दूसरी साइड के ऊपर जहां पे हमारे पास कैपिटल स्टॉक आ रहा है, तो कैपिटल स्टॉक बेसिकली कैपिटल है हमारा, शेयर कैपिटल। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं क्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी सिंस द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। जो जिस तरह से हम करते हैं ना, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट विल बी इक्वल टू समथिंग माइनस ड्राइंग्स, तो ये कैपिटल के अंदर रिटेन्ड अर्निंग को ऐड किया हुआ है। ये रिटेन्ड अर्निंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को इंडिकेट करता है। और यहाँ पे अब हमने माइनस करना है अनरियलाइज होल्डिंग लॉस। अगर गेन होता तो इसको प्लस कर देते। ठीक है, तो 2000 उन्होंने एसेट से रिड्यूस कर दिया, 2000 रुपया स्टॉक होल्डर इक्विटी से रिड्यूस कर दिया। इन दिस वे योर बैलेंस शीट इक्वेशन विल बी बैलेंस। तो यहाँ पे दोनों ही एडजस्टिंग एंट्रीज के इफेक्ट सिर्फ बैलेंस शीट में शो होंगे,
ठीक है, none of the effect will be shown in the income statement. जी, is it clear? चलो ठीक है, and the topic is over. जी, थैंक यू सर। ठीक है, ये मैं अभी आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, अभी आपके पास ये आ जाएगा।